Hello students, I am Dr. Avnish Kumar Singh from Ambalika Institute of Management and Technology, Lucknow. In this session, we are going to study the application of Schrodinger equation. Last session, we have studied the Schrodinger equation, time dependent, time independent. Now we are going to study the application of that equation in our syllabus. एक ही syllabus है, हम syllabus में एक ही equation, एक ही application है, that is the particle in 1D box, and that belong to the module 3 quantum mechanics and of our subject physics. Now, after this session, a student will able to explain the Schrodinger wave function and its characteristics, evaluate eigenvalue and eigenfunction for a particle in one dimensional box, and solve the probability and energy of a macroscopic particle in one dimension. यानी कि वेव फंक्शन को अच्छी तरह समझ सकेंगे, उसकी करेक्टिव समझ सकेंगे। अगर पार्टिकल से है रिलेटेड, तो अगर मैथमेटिकल फंक्शन है वो ऐसा हो भी सकता है कि पार्टिकल से रिलेटेड ना हो, कोई ऐसे ही एब्सर्ड फंक्शन हो, तो वी हैव टू डिफाइन सम करेक्टरिस्टिक्स जिससे हम डिस्कस कर सकें कि नहीं, ये जो पार्टिकल, ये जो वेव फंक्शन है दैट बिलोंग टू द पार्टिकल, और उसका फिर आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू समझेंगे और उस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। नाउ Schrodinger wave function, there is no direct physical meaning of Schrodinger wave function psi. Why? Because psi is a complex number and that is mathematics में आपने complex number पढ़ रखा है. Psi is equal to a plus ib, but mod psi square अगर निकालें तो देखें वो क्या आता है. So mod psi square is equal to psi star psi. तो psi is a plus ib, या हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले सकते हैं, a plus ib से समझें. सो psi स्टार इज a माइनस ib, कॉन्जुगेट हो गया उसका, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स a माइनस b, a प्लस b का मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकली देखते हैं, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ दिस रिजल्ट इज रियल एंड नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव. So psi is complex number, but mod psi having the value which is real and positive, and that is known as probability density of that particle. So with the help of mod psi square, one can evaluate the probability, energy, linear and angular momentum of moving particle. Wave function contains all the dynamical information about the system it describes. We have already studied, so we can with the help of psi, not directly but analyzing it, evaluating it, we can get lot information about the moving particle. Now further, Born interpreted that wave function, that the probability p, that is the particular position at a particular instant of time of finding a particle position between x and x plus ds. कोई दो पोजीशन के बीच में मान लीजिए let, yeah. So Born interpreted that if we have an, now if there is a particle, then पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, उस वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के कहीं होने की संभावना है, कहीं भी हो सकता है पार्टिकल. ये अगर आपकी वेव है, कहीं स्टार्ट हो रही है, कहीं ख़त्म हो रही है, ये मैटर वेव है, इस मैटर वेव के अंदर कहीं हो सकता है. तो हम अगर कोई रेंज डिफाइन करें x और x प्लस डी एक्स, इसके बीच में क्या होगा, या हम ये कोई रेंज डिफाइन, इसके बीच में क्या पोजीशन है, क्या प्रॉबिलिटी है, तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड साई स्क्वायर. सो p xt, that is the psi xt star psi xt or psi star psi, that is mod psi square, which represent the probability density. Probability we can again can also represent by small p or capital P, that is the probability density. So ये हम लोग किसी पर्टिकुलर बहुत छोटे रेंज की बात कर रहे हैं x और x प्लस ds के बीच में. नाउ अगर ये फंक्शन एक्चुअली
डिफाइन कर रहा है किसी मूविंग पार्टिकल को या मूविंग पार्टिकल से एक्चुअली एसोसिएटेड है, ये हम लोग देखें इसकी मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? यही अगर हम कह दें कि पार्टिकल डेंसिटी को इंटीग्रेट करें ओवर ऑल स्पेस, ध्यान से देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन्स ओवर ऑल स्पेस, कहीं भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने पर अगर वैल्यू 1 आती है, प्रोबेबिलिटी इज 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 100%, particle exists somewhere, the probability of finding the particle over all space is 1, that is particle exists somewhere, कहीं ना कहीं particle exist करता है। इसका मतलब ये साई किसी पार्टिकल से रिलेटेड है। अगर हमें निकालना हो कि पार्टिकल रिलेटेड है या हम जानते हैं कि ये साई पार्टिकल रिलेटेड है, तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो इफ this probability, that is again integrating over minus infinity to plus infinity, that is equal to 0, that means पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी नहीं है, और पार्टिकल कहीं भी नहीं है अगर प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ऑब्वियसली इस साइज से रिलेटेड कोई पार्टिकल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है भाई, जब भी हमें कहीं पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन मिलेगा, उस वेव फंक्शन वैलिड है कि नॉन वैलिड है, वी कैन जस्ट चेक इट बाय यूजिंग दिस कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ना अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जैसा कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि कोई x1 पोजीशन है, कोई x2 पोजीशन के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तब क्या करेंगे? यहां जो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की बात कर रहे थे, अब हम रेंज को डिफाइन कर दें, कोई x1 कोई x2, और उसके बीच में देख लें कि इसी को इंटीग्रेट करना है, x1 टू x2 मॉड साई स्क्वायर dx। नाउ साई स्टार साई dx, ये ध्यान रखें लिमिट्स आ गई x1 टू x2। सो अब हमें मालूम है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन x1 से लेकर के x2 के बीच में पार्टिकल के होने की संभावना, पार्टिकल बहुत जगह बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में क्या संभावना है? अब ये फिक्स पोजीशंस हैं, इट मे बी फर्दर अवे, वहां पर क्या करते हैं x एंड x प्लस dx, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट इट कैन बी फर्दर अवे, दूर भी हो सकता है ये। नाउ अनदर फार्मूला दैट कैन बी यूज टू गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू? इट इज एक्चुअली द एवरेज वैल्यू। अगर हम निकालते हैं किसी जगह पे कि हाँ ये मान लो कोई मैटर वेव है और इसमें कहीं पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, तो बार बार निकालते हैं, तमाम बार निकालते हैं, तो जो एवरेज निकल के आएगा, मतलब मैक्सिमम सर्टेनिटी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू कहीं पर निकल के आएगी, एंड दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई dx। सेम फार्मूला, बट यहां पर देखिए x आ गया, ध्यान रखेंगे फार्मूले का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई नहीं, x है, साई स्टार x साई dx, limit minus infinity to plus infinity. This integral can be interpreted as average value of x that we would expect to obtain from a large number of measurements। बार बार अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, पोजीशन निकालने की कोशिश करें, तो बहुत सारी वैल्यूज का जो एवरेज आएगा दैट कैन डायरेक्टली बी फाइंड बाय दिस वैल्यू। नाउ फिर से अगर वेव से रिलेटेड पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन है, तो जो कंडीशंस फॉलो होंगे, मैथमेटिक्स में भी जब किसी y या किसी साई या किसी u फंक्शन को डिफाइन करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैसे यहाँ भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस। सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड, मैथमेटिक्स की तरह बिल्कुल है ये फंक्शन को डिफाइन करने का मेथड। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साई, नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ साई क्या? x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में, दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस। ये दोनों कंडीशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है। और ये एडिशनल हो गया कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। हमने पहले डिस्कस किया कि साई क्या होना चाहिए, अगर पार्टिकल से रिलेटेड है तो उसके होने की संभावना कहीं ना कहीं 100% है, तो ये कंडीशन हमेशा वहां फॉलो कर जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगी अगर साई की बात कर रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्टली 2 नंबर में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ना एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लास्ट टाइम पढ़ा, दोनों थे टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। जैसा पहले बताया था, फॉर नोन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V
wave function psi can be evaluated by using time dependent और time independent Schrödinger equation as per requirement। हमें चेक करना होगा कि इक्वेशन में आखिर क्या दे रखा है, कंडीशन कैसी है, क्या टाइम डिपेंडेंट कंडीशन है या टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशन है, उस हिसाब से पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें अप्लाई करके psi को निकालना होगा। Schrödinger equation describe the wave function of quantum mechanical system which give probabilistic information about the observable properties. So we can get large number of properties that related to that particle, like location of particle, its momentum, etc. It can be used. अब इसके लिए आप किस तरह के पार्टिकल को, लार्ज नंबर ऑफ केसेस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस Schrödinger equation. द सिंपलेस्ट वन इज पार्टिकल इन 1D बॉक्स। क्या होता है अभी देखते हैं। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, उसकी हाइट इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी, दोनों देख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको। हार्मोनिक ऑसिलेटर, पैराबोला एंड मैनी मोर। रिमेंबर ऑलवेज देयर इज चेंज इन वी, जैसे वी बदलता जाएगा केस चेंज होते जाएंगे और हम उस केस के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये भी पूछता है कभी कभी, या हम एक्चुअली जब सॉल्व करते हैं निकालते क्या, यही निकालते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। व्हाट इज दिस? द वेव फंक्शन फॉर ए गिवन फिजिकल सिस्टम कंटेन्स द मेजरेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। जैसा पहले बताया कि वेव फंक्शन अगर हम उसको लेके सॉल्व करते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें पार्टिकल के बारे में, सिस्टम के बारे में तमाम जानकारी मिलती है। टू ऑब्टेन द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, one have to operate the wave function with the quantum mechanical operator associated with that operator. So अगर हमें कोई पर्टिकुलर पैरामीटर को सॉल्व करना है तो हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर उस पर फंक्शन पे अप्लाई करना होगा, देन वी कैन गेट द रिजल्ट। जैसे कि अगर एनर्जी के लिए सॉल्व करना है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। अभी लास्ट टाइम देखा हमने, अगर एनर्जी के लिए वैल्यू निकालनी है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सॉल्व करें, देन वी कैन गेट दिस वैल्यू। Again, solution exists for time independent Schrödinger equation only for certain values of energy, and those are known as eigenvalues of energy En. So it is not a single value, large number of values that will depend upon the value of n. We have written here En, not E. That means for n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on, we can have different value of E, and where n is the quantum number, we will study in detail further. The solution to the Schrödinger equation for a given energy involve also finding the specific function which describe the energy state. Energy states भी कई तरह की हो गई, depend upon the quantum number, and those corresponding to each eigen value there is a specific function that is known as eigen function, and that is described by psi n. So again, we having different energy values and corresponding to that we have different energy functions, that is eigen functions. So eigen values and eigen functions. Eigen functions again written as psi n. So for different quantum number we can get different values and different function. ये example हमने पहले देखा था, that is Hamiltonian operator psi n is equal to E n psi n. So psi n यहाँ पर क्या हो गया, that is energy function, एंड ई एन क्या हो गया, दैट इज एनर्जी आइगन वैल्यू। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले जब डेरिवेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर देखें, जब एक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को जानने के लिए, तो इस तरह से आपको इक्वेशन में रिजल्ट आता है। नाउ द ओनली वन डिस्कशन वी हैव टू डू, दैट इज पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, या पार्टिकल इन बॉक्स, और पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल, और पार्टिकल इन rigid wall, infinitely high rigid wall. That means अब यहाँ पर केस क्या है समझें, हमारे पास कोई रेंज डिफाइन है फ्रॉम 0 to L, और इसके बीच में कहीं पार्टिकल है, और इस रेंज के बीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, V इज इक्वल टू 0 है, और बाहर क्या है, बाहर V इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये जो दीवारें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पोटेंशियल हाइट को, और ये कितनी है, इनफाइनाइट, बहुत ऊंची। इसका मतलब पार्टिकल जनरली बाहर नहीं आ सकता है। कुएं में अपने मेढक डाल दिया तो मेढक के लिए दीवारें कैसी इनफाइनाइट हैं, वो कैसे बाहर आ सकता है। क्वांटम मैकेनिकली हाँ केस डिफरेंट होता है, लेकिन फिलहाल
दिस पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज देयर इज ए दिस हाइट इज इनफाइनाइट. इसको बोलते हैं पोटेंशियल वेल. वन डायमेंशन बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग थ्री डायमेंशन केस भी होता है, फाइनाइट पोटेंशियल भी होता है, बट जो अपने यहाँ सिंपलेस्ट केस है दैट v इज इक्वल टू 0. सो ये टाइम इंडिपेंडेंट दिख रहा है, कोई टाइम का फंक्शन नहीं यहाँ पर, तो वी हैव टू यूज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन. और यहीं पर क्या पुट करना है, v इज इक्वल टू 0 इन दिस केस. सो वी हैव हियर v इज इक्वल टू पुट कर दिया 2mh क्रॉस स्क्वायर e. अब क्या है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा. तो इसकी जगह रख दें के स्क्वायर पुट कर दें. क्या हो गया भाई, वी हैव दिस डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका सीधा रिजल्ट होता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स. देखें नाउ solution of this standard second order partial differential equation is psi is equal to a sin kx plus b cos x. Here we have two constants, that is integration constant a and b, unknown constants. We have to evaluate this constant, then only we have the complete information, complete value of this psi. So पहले भी आपने इंटरमीडिएट में या पहले कभी पढ़ा होगा कि जब इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ कॉन्स्टेंट्स आता है कैसे सॉल्व करते हैं. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई we can put the value of x and y and we can get the value of that constant. But यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं. अगेन रिमेंबर दैट फिगर, बाउंड्री कंडीशंस हैं. यहाँ पर क्या था, साई इज इक्वल टू 0, यहाँ साई की वैल्यू थी, यहाँ साई इज इक्वल टू 0. और किस जगह पर, यहाँ पर था x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l. तो बाउंड्री कंडीशन मतलब एक्सट्रीम कंडीशन. फॉर x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू l साई इज इक्वल टू 0, बट इन बिटवीन साई वहां पर है. और अगर ऐसा है तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है. एक बाउंड्री कंडीशन तो ये है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दैट फॉर x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0. इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर तो देखें यहाँ पर साई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया. और cos 0 इज 1. सो ओनली रिजल्ट वी हैव b इज इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करने पर रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू 0. अगर ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स. अगेन वी डोंट नो द ए. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, यहाँ देखें x इज इक्वल टू एल साई इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू एल के लिए साई इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया भाई, यहाँ देखें इसमें ये साइन 0 साइन के एल इज इक्वल टू 0, साइन के एल इज इक्वल टू 0. तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू एन पाई याद आ रहा है, माइनस वैल्यू ना बात करें प्लस की बात करें एन पाई. तो एन पाई के लिए अगर डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर हो गया के एल, थीटा की जगह यहाँ पर क्या है के एक्स, एल पुट कर दिया के एल एंड दैट इज इक्वल टू एन पाई और के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल. सो वी हैव नाउ वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ L, known value, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. This is known as quantum number having positive values, integer values. Now, by using equation number 2 that is k square. So we have k is equal to actually under root 2mh e, under root 2mh cross square e. अगर under root में रखें तो ये वैल्यू अगर आपने के एल इज इक्वल टू एन पाई में पुट कर दी तो we can go for the value of e. and since this is not actually, अब ये e नहीं रह गया, क्यों, this is depend upon n where n is equal to 1, 2, 3 and so on. So we have large number of e values when we put value n is equal to 1, 2, 3 and so on. So this is known as en depend upon the value of n square pi square h cross square upon 2 ml square. Again we can put the value of h cross that is h upon 2 pi. वो करेंगे तो कुछ पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट होगा ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर विच इज नोन एज आइगन वैल्यू ई एन. एंड रिमेंबर वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट सी इट, ई की वैल्यूज क्या हैं. अब ई की वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल रही हैं डिस्क्रीट. एन की वैल्यू 1 पुट किया कुछ वैल्यू, एन की 2 वैल्यू पुट किया कुछ वैल्यू, एन की वैल्यू 3 पुट किया कुछ और वैल्यू. ये सर्टेन वैल्यूज. तो अब क्या देख रहे हैं, पार्टिकल की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, सर्टेन वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यूज केवल पॉसिबल है, कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम.
क्लासिकली पार्टिकल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहां पर कुछ डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, दैट इज ई डिपेंड अपॉन एन। तो एन इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ सम फंक्शन। ये देख रहे हैं यहां पर कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, बीच की वैल्यूज नहीं है वहां पर। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 5 दैट इनसाइड द पोटेंशियल बॉक्स particle cannot have any arbitrary value but can have only certain discrete energy corresponding to quantum number n is equal to 1 2 3 and remember one thing, जब बोलते हैं E1 तो E1 क्या है, E1 is the ground state energy, E2 first excited state, E3 second excited state, E4 third excited state। so एग्जाम में आता है कभी सेकंड निकालिए थर्ड निकालिए, ध्यान रखें एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो स्टार्टेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एट n is equal to 2, ये ध्यान रखेंगे एग्जाम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हमने k की वैल्यू पुट कर दी n पाई बाई l, तो हमारे पास साई की ये वैल्यू है, साई n इज इक्वल टू a साइन n पाई बाई एल एक्स, बट स्टिल वी डोंट नो द a को निकालना है। हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज कर ली, हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज कर ली, बट प्रॉब्लम स्टिल देयर दैट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ a। तब क्या करेंगे, हमने कहा था एक कंडीशन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, अगर पार्टिकल से रिलेटेड साई है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो वो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो वो अप्लाई कर दिया भाई, ये हमेशा अप्लाई होगा। मॉड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो अगर वो अप्लाई करें तो साई की वैल्यू उठा के पुट कर दें यहाँ पर, a साइन n पाई बाई एल एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स, बट साई ओनली हैव वैल्यू 0 to l। रिमेंबर अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अगर पार्टिकल था, ये बॉक्स था और इसमें वैल्यू का माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या है 0 से l। रिमेंबर वैल्यू ऑफ साई, यहाँ साई 0 है, यहाँ साई है, यहाँ साई 0 है, तो अगर कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू l, l टू प्लस इन्फिनिटी। और हमारे लिए वैल्यूबल वैल्यू क्या है, मीनिंगफुल वैल्यू क्या है, ओनली बिटवीन 0 टू l। So we can change this integration limits from minus infinity to plus infinity 0 to l. So we can change this limit of integration a square, now this integration, now sin square को अगर इंटीग्रेट करना हो, sin square को इंटीग्रेट करना हो तो we have to change in the by this formula cos 2 थीटा में बदल लेते हैं। तो साइन थीटा ये आपने निकाला साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और उठा करके इसको उठा करके आपने ये वैल्यू निकाल करके यहाँ उठा के पुट कर दिया 1 माइनस कॉस, ये पूरा हाफ हाफ, तो हाफ बाहर चला गया, 1 माइनस कॉस 2n पाई बाई एल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर बाई 2, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे देखो 1 की जगह x आ गया, एंड कॉस ए एक्स को मान लीजिए इंटीग्रेट करना हो तो साइन ए एक्स बाई ए, एक्स को कोफिशिएंट नीचे आता है, वही देखिए यहाँ भी हो रहा है, साइन 2n पाई बाई एल इंटू एक्स, तो साइन 2 ये 2n पाई बाई एल नीचे आ गया और कॉस की जगह यहाँ हो गया साइन। सिंपल इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, कॉस 2n पाई बाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई एक्स बाई एल या l बाई एल इंटू एक्स 2n पाई बाई एल, कोफिशिएंट नीचे। नाउ वी हैव टू पुट दिस लिमिट्स, l 0, l पुट करें, l पुट करें x इज इक्वल टू l, तो यहाँ पर आ गया। जब यहाँ l पुट करेंगे तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू l पुट किया तो ये l कट गया, यहाँ 2n पाई, ना 2n पाई, तो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो साइन की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। अब 0 पुट करें x इज इक्वल टू 0 तो 0 हो ही गया, और यहाँ देखें जब 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 साइन 0, ये भी 0 हो गया, तो ओनली वैल्यू यू हैव द l, a स्क्वायर बाई 2 इंटू l दैट इज इक्वल टू 1, एंड सो a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल, अंडर रूट 2 बाई एल। नाउ ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी, वी कैन गेट द रिजल्ट। सो इक्वेशन 6 बिकम साई n इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई बाई एल इंटू एक्स। सो नाउ दिस इज द आइगन फंक्शन, और आइगन फंक्शन किसके करस्पॉन्डिंग, एनर्जी वैल्यू En, तो ये आइगन फंक्शन हो गया, और En निकाला था वो आइगन वैल्यू है। फॉर डिफरेंट क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 वी हैव साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन, अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हमने क्या निकाला, एक प्रॉब्लम सॉल्व की क्वांटम मैकेनिक्स में, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, उसकी आइगन फंक्शन निकाला, आइगन वैल्यू निकाली ना। देखें कैसे पार्टिकल में एक्चुअली साई और मॉड साई स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी वेरी करती है। देखें यहाँ पर
कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 तीन के लिए इसको लेके समझने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आता है, ये जो वेरिएशन है दैट इज फॉर साई एंड दिस वेरिएशन इज फॉर मॉड साई स्क्वायर। तो हम लोग एक कोई समझते हैं, बाकी दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर वैल्यू x की पुट करते जाएं तो वो फार्मूला जो था हमारे पास साई n इज इक्वल टू √2/L साइन, तो उसमें वैल्यू x की पुट करते जाएं तो हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। वो रिजल्ट को ड्रॉ करें तो ये ग्राफ बन जाएगा। देखें x इज इक्वल टू जब 1 पुट करने तब क्या होता है, तब हमारे पास L/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी, तो यहां पर आ जाता है वैल्यू। बट जब n इज इक्वल टू 2 रहेगा तब L/2 पर क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। वो n पाई के यानी पाई के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 0 वैल्यू। सो जो क्लियर चीज दिख रही है हमको, साई n में भी पॉजिटिव और नेगेटिव साई के लिए, बट मॉड साई स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव है, मॉड साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रहेगी। साई n इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम मैकेनिकली कॉर्नर पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, साई किनारे नहीं है। क्लासिकली हो सकता है, क्लासिकली तो डिब्बे में हर जगह पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, बट यहाँ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी और उसकी वैल्यू सब अलग अलग आ रही है। बट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n वी कैन गेट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक ही पॉइंट पर अलग अलग n के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी है और सो पार्टिकल मिल रहा है हमें। सो इसको देख के समझ सकते हैं। अगर डिस्कस करने के लिए एग्जाम में पूछता है तो इसको डिस्कस कर लेंगे भाई। ना वी कैन टेक ए स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें खूब पूछता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दो तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वन एनर्जी आइगन फंक्शन के रिलेटेड, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आता है, दूसरा आता है एनर्जी निकालने के लिए। देखें, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1D रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ L। अब L दे रखा है और हमें क्या करना है, ग्राउंड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेज के बीच का डिफरेंस निकालना है। सो मालूम था हमें En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। सो n इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर n को छोड़ दें, बाकी सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये जूल में आ गया और इसको 1.6 10 टू पावर -19 डिवाइड कर दिया, देन वी हैव 38 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और यहाँ कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट, दोनों की एनर्जी निकाल लें, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 3 पुट करके E1 E3 दैट विल बी दिस वन, और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो वी कैन टेक द डिफरेंस, दैट इज द रिजल्ट। तो ध्यान रखें, एग्जाम में खूब पूछता है एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, डिफरेंस सब निकाल सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल अलग लेंथ के लिए। m की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन था कोई दिक्कत नहीं था, इलेक्ट्रॉन जो कुछ और हो तो हम m की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द probability. Find the probability of finding the particle trapped in a box of length L in the region 0.045 L to 0.55 L। तो ये रेंज दे रखी है, इस रेंज के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो ये साई पहले से मालूम था हमें, कुछ साई दे रखा हो तो वो साई यूज करेंगे, नहीं दे रखा हो तो वही स्टैंडर्ड साई यूज करेंगे जो पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स निकाला है हमने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2 पहले पढ़ रखा था, nth स्टेट में क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ये x1 से x2 में इंटीग्रेट करना है। सो x1 से x2 इंटीग्रेट करना है, ये वैल्यू आपने स्टैंडर्ड पुट कर दी, ये साइन स्क्वायर आ गया, बट साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के लिए cos 2 थीटा में चेंज करना पड़ता है, पहले डिस्कस किया था। तो हाफ 1 माइनस कॉस, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा। नाउ थीटा की जगह यहाँ पर 2n पाई बाई एल इंटू एक्स है, n पाई बाई एल इंटू एक्स है, 2 थीटा हो गया, यहाँ थीटा था। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दिया भाई, 1 की जगह आ गया x, और वैसे ही जैसे ये नीचे आ जाए कोफिशिएंट और साइन 2n पाई बाई एल, तो l अपॉन साइन 2n पाई x। नाउ x1 टू x2 पुट करना है, लेकिन हमारे पास मालूम है x1 क्या था 0.45 L, x2 क्या था 0.55 L। ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, P इज इक्वल टू 1 बाई एल एक्स माइनस एल बाई 2 पाई, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, साइन 2 पाई बाई एल एक्स 0.55 L 0.45, अरे वैल्यू पुट करेंगे तब क्या होता है, देखें यहाँ पर पहले एक वैल्यू पुट की 0.55 L एक्स की जगह पर और n की x की जगह यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ भी
x2 0.45 और x2 की वैल्यू यहाँ। अब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये 0.55 और ये 0.45 तो अलग से आ सकता है। बाकी वैल्यूज जो हैं वो सिंपली सॉल्व, ये ध्यान रखेंगे कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है जब बाहर होती है, बट अगर मान लीजिए कि ये अंदर होती है तो 180 होता है, तो 180 पुट करके सॉल्व करेंगे 198 डिग्री 162 डिग्री सॉल्व कर लेंगे सिंपली बाय यूजिंग सी और डी और डायरेक्ट कैलकुलेटर से, वी कैन गेट द रिजल्ट दैट इज 0.198. सो 19.8 इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ओके, तो एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।